Greetings to all the children. Today we are going to start with the third chapter, Swami's grandmother. In the ill-ventilated dark passage between the front hall and the dining room, Swaminathan's grandmother lived with all her belongings, which consisted of an elaborated bed made of 5 carpets, 3 bed sheets and 5 pillows, a square box made of jute fiber, and a small wooden box containing copper coins, cardamoms, cloves and areca nut. Swaminathan's grandmother she was an old lady who lived in an ill-ventilated dark passage between the front hall and the dining room. और स्वामीनाथन की अपनी ग्रैंडमदर से काफ़ी बनती थी, वो उनके साथ सारी बातें शेयर किया करता था. रात के खाने के बाद स्वामीनाथन और उसकी ग्रैंडमदर दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं. तो उनकी बातचीत किस तरह की है? काफ़ी फ्रेंडली टोन है उसका, स्वामीनाथन का भी और ग्रैंडमदर का भी. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. After the night meal, with his head on his granny's lap, nestling close to her, Swaminathan felt very snug and safe in the faint atmosphere of cardamom and cloves. "Oh, Granny," he cried ecstatically, "you don't know what a great fellow Rajam is." He told her the story of the first enmity between Rajam and Mani and the subsequent friendship. "You know, he has a real police dress," said Swaminathan. "Is it? What does he want a police dress for?" asked Granny. स्वामीनाथन ने बताया कि राजम के पास में रियल पुलिस ड्रेस है, वो एक बहुत ग्रेट लड़का है, वो पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है. तो ग्रैनी ने पूछा, आखिर उसको पुलिस ड्रेस की ज़रूरत किस लिए पड़ी भाई? उसको ऐसा क्या काम पड़ गया? बच्चा है आखिर. "You know, he has a real police dress," said Swaminathan. "Is it? What does he want a police dress for?" asked Granny. "His father is a police superintendent. He is a master of every policeman here." Granny was impressed. तो फिर उसके बाद स्वामी ने बताया कि भाई उसके फादर पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं और यहाँ के जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट है पूरा, वो उसके मास्टर हैं. ग्रैनी ये बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गई और वो अपनी बातें बताने लगी कि उसके ग्रैंडफादर कैसे थे, सब क्या करते थे और वो भी पुलिस में थे. और उसके बाद में जो ग्रैनी ने बताना शुरू किया उसके ग्रैंडफादर के बारे में, दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग. शी देन recounted the days when her husband Swaminathan's grandfather was a powerful sub-magistrate, in which office he made the police force tremble before him and the fiercest dacoits of the place flee. Swaminathan waited impatiently for her to finish the story, but she went on, rambled, confused, mixed up various incidents that took place at different times. "That will do, Granny," he said ungraciously. "Let me tell you something about Rajam. Do you know how many marks he gets in arithmetic?" बोले, "ग्रैनी बस कीजिए आप," क्योंकि उसकी ग्रैनी ने बोला, "तुम्हें पता है, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे उनके सामने पूरी पुलिस फोर्स कांपती थी. सारे लोग डरते थे. इवन जो सबसे खतरनाक से खतरनाक डकैत भी जो होते थे, डेकॉइट्स होते थे, वो सब उनके सामने ट्रैम्बल करते थे." तो स्वामीनाथन को अपनी बात बताना अच्छा लगता है, लेकिन वो ग्रैनी की बात सुनने का पेशेंस नहीं है उसमें. वो बोलता है, बस ग्रैनी, आपको पता है राजम को कितने मार्क्स मिलते हैं अर्थमेटिक में? तो ग्रैनी ने सिंपल सा जवाब दिया, "No, he gets all that marks, does he?" ग्रैनी ने कहा, "सारे मार्क्स." "No, silly," स्वामीनाथन ने कहा, "he gets 90 marks out of 100. Good, but you must also try and get marks like him. You know, Swami, your grandfather used to frighten the examiners with his answers sometimes." अब ग्रैनी ने क्या बताया? तुम्हें पता है स्वामी, वैसे तो तुम्हें भी ऐसे मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, इतने अच्छे मार्क्स राजम की तरह. तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं ना, वो अपने आंसर्स से एग्जामिनर्स को इतना डरा देते थे कि जब एग्जामिनर्स उनकी कॉपीज चेक करते थे तो वो कभी कभी खुश होकर उनको 100 में से 200 मार्क्स दे देते थे. ये बात थोड़ी हजम होने वाली तो वैसे कम ही है, पर ठीक है, ग्रैनी कह रही हैं, फ्रेंड है स्वामीनाथन की. When he answered a question, he did it in 1/10 of the time that others took to do it, and then his answers would be powerful.
so powerful that his teachers would give him 200 marks sometimes. Very funny. When he passed his FA, he got such a big medal. I wore it as a pendant for years. Till when did I remove it? Yes, when your aunt was born. No, it wasn't your aunt. It was when your father was born. अब ग्रैनी ने बोलना शुरू किया, तुम्हें पता है जब उन्होंने अपना FA पास किया तो उनके इतने अच्छे मार्क्स थे कि उनको FA में एक बहुत बड़ा मेडल मिला। अब ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो मेडल्स मिला करते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो मेडल्स एक्चुअली। लेकिन ग्रैनी ने क्या कहा, दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो। उन्होंने कहा कि वो उस मेडल को उन्होंने कई साल तक ग्रैनी ने पेंडेंट की तरह पहना। और आखिर फिर कब मैंने उससे उतारा, हाँ जब तुम्हारी बुआ तुम्हारी आंट बॉर्न हुई और इस तरह से बातें करने लगी वो, और मैंने फिर वो तुम्हारी जो आंट हैं तुम्हारी जो बुआ हैं उनको दे दिया। वो इतनी फूल थी, उसने उसको पिघला के 4 चूड़ियाँ बनवा ली सोने की, वो भी इतनी गंदी डिज़ाइन की। Oh, enough, Granny. You go on bothering about old and unnecessary stories. Won't you listen to Rajam? स्वामीनाथन ने कहा, ग्रैनी आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आप राजम के बारे में सुनना चाहेंगे? आपको पता है राजम ने एक बार क्या किया था? स्टूडेंट्स, अब जो मैं आप लोगों को राजम के बारे में बताऊंगी कि उसने टाइगर को किल किया या क्या, जो भी उसने स्वामी ने राजम के बारे में अपनी ग्रैनी को बताया, वो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग तो है ही, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, जो अक्सर पूछा जाता है। व्हाट डिड स्वामीनाथन टेल हिज ग्रैनी अबाउट राजम? तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। एंड आई हैव सेंट यू द पेजेस ऑल्सो, द चैप्टर वाइज पेजेस ऑल्सो, सो प्लीज़ रीड दोज पेजेस। Granny, when Rajam was a small boy, he killed a tiger. Indeed, the brave little boy. Granny के लिए तो सवाल ही नहीं उठता था कि वो स्वामी की किसी बात को मना कर दे। उन्होंने कहा, हाँ बड़ा साहसी लड़का है वो। Don't believe it? You are saying it just to please me? आप ये सब मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं Granny? Swaminathan started the story enthusiastically. Rajam's father was camping in a forest. He had his son with him. 2 tigers came upon them suddenly, one knocking down the father from behind. The other began chasing Rajam, who took shelter behind a bush and shot it dead with his gun. Granny, are you asleep? Swaminathan asked at the end of the story. No dear, I am listening. बोले आपको पता है एक बार राजम के फादर फॉरेस्ट में कैंपिंग कर रहे थे, तो अचानक 2 टाइगर्स ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और राजम ने टाइगर को शूट कर दिया। वो उस समय बहुत छोटा था। अब जब अभी वो इतना छोटा है, वी कैन इमेजिन कि राजम ने भी जो बोला होगा उसमें कितनी सच्चाई होगी, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तब उसने ऐसा किया था। गप, खैर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है खैर सुनने में भी। स्वामीनाथन became indignant at his grandmother's inaccuracy. उसने क्वेश्चन किया स्वामीनाथन से, अब ग्रैंडमदर से। स्वामीनाथन के लिए इतना काफ़ी नहीं था कि वो राजम के बारे में बताता, वो क्वेश्चन आंसर्स भी करता है। और अगर ग्रैनी गलत रिप्लाई करती है, रॉन्ग आंसर देती है बेचारी, तो वो उनको डांटता भी है। और क्या बोलता है फिर उसके बाद में? Swaminathan became indignant at his grandmother's inaccuracy. Here I am going hoarse telling you important things and you fall asleep and imagine all sorts of nonsense. मैं यहाँ चिल्ला कर मेरा गला खराब किए जा रहा हूँ ग्रैनी, और आप सारे गलत बातें बोल रही हैं राजम के बारे में। ग्रैनी, probably you don't believe the tiger incident. ग्रैनी, मुझे लगता है कि आपको टाइगर इंसिडेंट पर विश्वास नहीं है। I know why are you so indifferent. You hate Rajam. स्वामी ने कहा, मुझे लगता है आप राजम से नफरत करती हैं। ग्रैनी ने कहा, no. He is a lovely little boy, Granny said with conviction. Though she had never seen Rajam, Swaminathan was pleased. Next moment a new doubt assailed him. Granny,
जब ग्रैनी ने कहा कि नहीं नहीं राजन तो बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे नफरत नहीं करती है, मतलब एक ऐसा, तो स्वामी खुश हो गया। लेकिन स्वामी ने अपनी ग्रैंड मदर को चेतावनी भी दे दी, ही वुड शूट एनीवन दैट कॉल हिम अ लायर। ध्यान रखना ग्रैनी, जो कोई झूठ बोलता है उसको राजम अपनी गन से शूट कर देता है।